Hello guys, this is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the angle of contact. So angle of contact, this is any solid surface and this is liquid surface. So it may be concave or it may be convex. So this is solid surface and this is liquid surface. Liquid and this is solid. So angle of contact is the angle between the tangents of liquid surface. This liquid surface tangent is this, and tangent of solid surface inside the liquid. सॉलिड सरफेस में जो टेंजेंट्स हो वो लिक्विड की तरफ हो, आउटसाइडेड नहीं, ये बाहर वाला नहीं, तो ये होगा angle of contact. Okay, it may be acute or may be obtuse. Okay, so the solid angle is the angle between the tangents of liquid surface and solid surface inside the liquid. यानी liquid surface के tangent और solid surface में liquid की तरफ ड्रॉ किए गए tangent के बीच का जो angle है that is contact angle. This is known as angle of contact or contact angle. Okay, so ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, यानी लिक्विड सरफेस में ड्रॉ किया गया टेंजेंट और सॉलिड सरफेस में लिक्विड की तरफ, लिक्विड के बाहर नहीं, लिक्विड की तरफ जो टेंजेंट है उसका बीच का जो एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल है. ओके, सो the value of contact angle for pure water and glass. For pure water and glass, the value of theta is 0 degree. Okay, and for the simple glass and water, for simple glass and water, the value of theta is equal to the 8 degree. 8 degree. Okay, and the value of pure water and silver, pure water and silver, and silver, the value of theta is equal to the 90 degree. Okay, for mercury and glass, the value of theta is equal to the 138 degree, and for water and chromium, the value of theta is equal to 160 degree. So just to remember this, the value of contact angle for pure water and glass is equal to 0 degree, and the value for of this contact angle for simple water and glass is equal to the 8 degree. Pure water and silver, this value is 138 degree, sorry 90 degree, and for mercury and glass this theta is equal to 138 degree, and for water and chromium this value is theta is equal to 160 degree. Okay, so let me discuss here. So in which condition this shape will be formed, just like plane, concave or convex. So this is any liquid where this is the cohesive force, this is angle of 45 degree, and this value of adhesive force. So it's this component is horizontal, so this is Fc cos 45 and this is Fc sin 45 degree. So condition first, so if Fa is equal to Fc sin 45, in this situation अगर ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे
तो लिक्विड सरफेस जो होगा इस तरीके से होगा, प्लेन होगा, बिकॉज यहाँ पर एफ रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लेन सरफेस फॉर्म होगी। ओके, अब अगर यहीं पर ऐसा कुछ हो जाता, कंडीशन सेकेंड, ओके, कि एफ ए लेस देन एफ सी साइन 45 डिग्री हो जाता, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन पर ये शेप जो होती वो कॉन्वेक्स शेप बनता, कैसे, इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये बन जाता, ये एफ सी साइन 45, तो यहाँ पर रिजल्टेंट ये एफ सी ऐसे होता, और रिजल्टेंट फोर्स जो होता वो इनसाइड द लिक्विड वर्क करता, और ये एडहेसिव फोर्स होता, ये कोहेसिव फोर्स था। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सरफेस मेंटेन होती वो कुछ इस तरीके की होती, ऐसे। ओके, दिस विल बी अ कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स शेप। तो अगर ये वैल्यू लेस देन एफ सी साइन 40, एफ ए लेस देन एफ सी साइन 45 होता, तो ऐसी सिचुएशन पर रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड द लिक्विड वर्क करेगा, और इसकी शेप जो होगी वो कॉन्वेक्स शेप होगी। और इसी का अल्टरनेट, अगर ये ग्रेटर देन हो जाता तो यही शेप ऐसी आ जाती, ये कॉनकेव शेप आ जाती, और ऐसी सिचुएशन पर इसका रिजल्टेंट इधर आ जाता, बाहर लिक्विड सरफेस से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी। ओके, और इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर अलग से दिखाएं तो प्लेन सरफेस कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या था, 0 था, क्लियर। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। और अगर यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप की बात करें तो वो कुछ ऐसी हो जाएंगी, दिस इज कॉनकेव शेप, एंड इन दिस सिचुएशन फोर्स इस तरीके से वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये कंडीशन कुछ इस तरह से होती, लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स शेप होता, दिस इज कॉनकेव शेप एंड दिस इज कॉन्वेक्स शेप। सो इसका जो रिजल्टेंट होता इनसाइड द लिक्विड, हमने पहले डिस्कस किया था अभी कि जब कॉन्वेक्स शेप थी तो रिजल्टेंट जो था वो लिक्विड के इनसाइड वर्क कर रहा था, तो ये ऐसे होगा, और जब कॉन्केव शेप थी तो रिजल्टेंट इसका आउटसाइड वर्क कर रहा था लिक्विड से, तो ऐसे वर्क करेगा। सो दीज आर द 3 स्पेसिफिक कंडीशन। ओके,